بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے اس دوسرے عشرے میں بالترتیب مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے، عقائد و نظریات پر روشنی ڈالتے ہوئے، اور خصوصاً بالخصوص نوجوانان اسلام کی جو ان کی ذہنی نشو و نما ہونی چاہیے تھی، اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم آج 15ویں رمضان تک آ چکے ہیں تقریباً، اور آج کے دن کی مناسبت سے ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے اسے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلوں، جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ یقینی طور پہ آل رسول کے حوالے سے جب بھی ذکر ہوتا ہے اور خاص طور پہ اولاد نبی کے حوالے سے جب ذکر ہوتا ہے تو آپ اور آپ کے والد گرامی کا نام نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک اپنا اعزاز رکھتا ہے، اور یہی آپ کی وجہ شہرت بھی بنی۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی، الحمدللہ۔ علامہ صاحب کل ہی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ آج ہم حضرت امام حسن کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق اور آپ کی زندگی سے کچھ روشنی پائیں گے تاکہ اپنے دلوں کو بھی چمکائیں اور جو ہماری امت کے نوجوان ہیں ان تک کوئی پیغام پہنچائیں۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے جس کو اسپیشلٹی کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کے بیٹوں سے نہیں بلکہ بیٹی سے چلی ہے۔ پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے ظاہری حیات میں رہتے اور نبی نہ ہوتے تو دوسرے کچھ کہہ سکتے تھے۔ بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کم سنی میں اٹھا لیا۔ 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں، جو آخری بیٹی ہے اور اولاد میں سب سے افضل حضرت سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، یعنی تمام جہانوں اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ سیدہ پاک سے نسب نبی کی طرف جائے گا۔ حضرت علی باپ ہیں مگر نسب جائے گا تو نبی کی طرف، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا میں ان کا باپ ہوں۔ تو اب ہم ان کا نسب نبی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اولاد رسول، بیٹی کے بیٹے ہیں، اور حضور نے خود ان کو اپنا بیٹا بھی فرمایا، اپنا پھول بھی فرمایا، سبت بھی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پھول فرما رہے ہیں تو پھول میں جو اثر ہوتا ہے وہ جڑ کا اور اصل کا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال کے پیکر۔ چنانچہ یہ حدیث شریف بڑی مشہور ہے کہ سیدنا امام حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو تصویر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور سیدنا امام حسین سینے سے لے کر پاؤں تک، ان دونوں کو جب ملا کے کھڑا کیا جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سامنے آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ ان کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری بتائی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے بیٹی کے گھر، فرمایا میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ آپ کی گود میں دیا گیا۔ تحنیک عربی میں کہتے ہیں، اردو میں گھٹی کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک دی جو گھٹی تھی، لعاب رسول ان کی گھٹی۔
पूछा हज़रत अली से क्या नाम सोचा है, तो अरब में रवाज था कि बच्चों का नाम दुश्मनों पर रोब के लिए ज़रा खौफनाक रखते थे ताकि दुश्मन मरूब हों, और ग़ुलामों के नाम बड़े मीठे अपनी तस्कीन के लिए रखते थे। तो हज़रत अली ने कहा मैंने इनका नाम सोचा है हरब। फरमाया बल हुआ हसन, ये हरब नहीं ये तो हसन है। और रवायतों में मिलता है ये दोनों नाम शहज़ादों के इससे पहले किसी और के नहीं थे। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला की कुदरत के उसने अपने नबी के शहज़ादों के लिए महफूज कर दिए थे। तो उनका नाम हसन रखा गया। ख़ुद नबी पाक ने ही उनको घुट्टी दी, उनके कान में अज़ान कही। ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि ख़ुद फरमाया इनके लिए कि इन नबनी हाजा सैयदुन, तो नबी पाक ने एक तो अपना बेटा फरमाया, दूसरा सैयद का लफ्ज़ हम औलाद रसूल के लिए कहते हैं। हालांकि अरबी में वैसे सैयद का लफ्ज़ आजकल मिस्टर और जनाब के लिए भी आता है, ख़ातून को सैयदा कह देते हैं, लेकिन वो निस्बत अपनी जगह वो सिर्फ लुग़वी तौर पर है। इस्तिलाही तौर पर और नसब के लिहाज से सिर्फ औलाद रसूल को शरीफ भी कहा जाता है। नजीब आजकल लोग सरदार के तौर पे भी लगाने लगे हैं जी। वो अब ये कि जो एक हमारे यहाँ मशहूर है सैयद दो तरह के होते हैं, एक ख़ानदानी होते हैं और एक बनावटी होते हैं। असली, नस्ली, फसली, ये आपके यहाँ जुमले बोले जाते। बहुत से लोग पाकिस्तान बनने के बाद जी शजरा वहाँ रह गया, तो सैयद बन जाना जो नहीं है। और हदीस शरीफ है बुखारी में दीगर में, जो सैयद नहीं है और अपने आप को सैयद कहलाता है, यानी जो बाप नहीं है उसको बाप बोलता है, तो ऐसे शख्स पर जन्नत हराम हो जाती है। अल्लाह। तो वो लोग जो सैयद कहलवाते हैं अपने आप को और सैयद नहीं हैं, वो बहुत बड़ा वबाल अपने ऊपर लेते हैं। लोगों में तो उनको थोड़ी बहुत जो भी वो चाहते हैं इज़्ज़त मिल जाती है, इज़्ज़त तो तकरीम की खातिर वो अगर पैसे के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन ये कि कितना बड़ा वबाल है ये उनको अंदाज़ा नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो ये ख़ुद इनके लिए सैयद का लफ्ज़ सरदार के माने में, आका के माने में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया। हमें ये रिवायत मिलती है कि सैयदा पाक अपने दोनों शहज़ादों को लेकर नबी पाक की बारगाह में आईं और कहा कि इनको कुछ दीजिए। अक़ीदा भी मालूम हो गया कि जो मिलता है अल्लाह के नबी के ज़रिए मिलता है और वो अता करते हैं। तो फरमाया हसन को मैंने अपना हिल्म दिया, हुसैन को मैंने अपनी शुजाअत दी। तो इस तरह ये जमाल मुस्तफ़ा के मज़हर भी हैं, कमाल मुस्तफ़ा के मज़हर भी हैं, पैकर भी हैं, मज़हर भी हैं। और फिर वो जो हदीसें मौजूद हैं दीगर, वो इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ करूँगा। तो ये बड़े शरफ़ वाले, बड़ी शान वाले जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, नबी पाक को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं और अहले बैत में शामिल। अहले बैत में बीवियां भी हैं, औलाद भी है। बिल्कुल। अगर इनकी सीरत के ऊपर गुफ्तगू की जाए और अगर उसका बगौर जायज़ा लिया जाए तो बड़ी, जिसे कहते हैं कि टॉलरेंस, पेशेंस बहुत पाया जाएगा, नरमी बहुत पाई जाएगी। और उम्मत के नौजवानों को या बिलउमूम उम्मत को जो ज़रूरत है इस वक्त टॉलरेंस, पेशेंस, हुस्न अखलाक के हवाले से इनकी सीरत में बहुत सारी बातें आती। ब्रेक पे जब जाएंगे, ब्रेक से आने के बाद जो है कोशिश करेंगे बचपन के कुछ वाक़यात भी अलम साहब बहुत यानी आज कह लें कि बहुत मशहूर भी हैं और बहुत सबक आमेज़ भी हैं, तो हम उस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं और ब्रेक से कबल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम में हम लाइव कॉल्स भी लेते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो भी कॉल करे कुछ रेलिवेंट टॉपिक से होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अलामत साहब आपका इसी शो के दौरान ही जवाब भी देंगे। और ब्रेक के बाद आएंगे तो इमाम हसन की ज़िंदगी, उनकी सीरत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और एक मुसलमान का उनके मुताल्लिक़ क्या अक़ीदा होना चाहिए, इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना।
علامہ صاحب امام حسن عقیدے کے حوالے سے ایک بات جی بتا بالکل۔ دوں، قرآن کریم نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ازواج مطہرات بھی اور اولاد بھی شامل ہے، لیکن یہ لوگ فرشتوں یا نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہو گئے، بلکہ اعلیٰ درجے کے محفوظ ہو گئے ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزگی عطا کر کے امت پر ممتاز کیا ہے۔ تو ہم ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں کریں گے، لیکن ان کو نبیوں کی طرح معصوم نہیں کہیں گے، نہ مانیں گے، لیکن یہ کہ چونکہ وہ پاکیزہ ہیں، ان کی پاکیزگی کا بیان خود رب نے کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جن 5 یعنی اپنے ساتھ 4 کو ملا کر چادر مبارک میں عبا شریف میں، اس میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ان کے لیے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک رکھ جیسا کہ حق ہے پاک رکھنے کا۔ کچھ لوگ ازواج مطہرات کو اہل بیت نہیں مانتے، کچھ ان کو نہیں مانتے، وہ دونوں غلط ہیں۔ ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں اور یہ بھی اہل بیت ہیں، قرآن و حدیث سے واضح ہو گیا، اس پر اس کے بعد کوئی اور کلام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام میں ہم گفتگو کر چکے ہیں، وہ بھی بڑی شان والے ہیں، ان کے سچے پکے مومن ہونے کی گواہی بھی رب تعالیٰ نے دی ہے، ان کے لیے اللہ نے فرما دیا میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ تو اب صحابہ و اہل بیت میں محبت تھی، احترام تھا، پیار تھا۔ آج اگر ان کے نام سے کوئی لڑواتا ہے تو یہ اس شخص کا فعل ہے، ان مقدس ہستیوں پر ہم کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ گھر والے ہوں یا در والے ہوں، نسبت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ جس کسی کو جو شرف ملا ہے نبی کی برکت سے ملا ہے۔ سیدہ پاک کی شان ہے اس لیے کہ وہ نبی کی اولاد ہیں، ان شہزادوں کی ہے تو نبی پاک کی اولاد۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا پیار فرماتے ہیں، ان کو سونگھتے بھی ہیں، ان کو چومتے بھی ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو آپ حضرت امام حسن کو چوم رہے تھے تو اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ فرمایا اللہ نے اگر تیرے دل میں رحم نہیں ڈالا تو یہ تیری محرومی ہے، مجھے تو بچے بہت پیارے لگتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کتنا کہ اپنے کندھوں پہ سوار کرا لیتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں شہزادے اگر آپ کی پشت پہ سوار ہو جائے، آپ سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں کہ ان بچوں کی دلجوئی ہو۔ نبی پاک کا اس طرح کرنا امت کے لیے تعلیم ہے۔ اب ذہن میں رہے کہ شرف نبی سے ملتا ہے تو ان کی عزت ہم نے جو جاننی ہے وہ یہ کہ نبی پاک کی وجہ سے، تو اب ہم ان کی کوئی بھی گستاخی کریں گے دل آزاری نبی کی ہوگی، تو کسی طرح بھی کوئی ہم سے ہلکا لفظ نہیں ہونا چاہیے، اور محبت میں ایسا غلو یعنی حد سے بڑھنا نہیں ہونا چاہیے جو ان کی شان کے منافی ہو، وہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت علی اور حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہما نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے، حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور کیا کہا، تم نبی سے ملتے ہو علی سے نہیں ملتے ہو، یعنی تمہاری شکل نبی جیسی ہے علی جیسی نہیں۔ حضرت علی مسکرا رہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں میں کتنا پیار تھا۔
اب تربیت ہو رہی ہے، نبی پاک نے خود فرما دیا میں نے اس کو اپنا حلم دیا اور اس کو اپنی شجاعت، تو وہ چیزیں نبی کی عطا سے ظاہر بھی ہوئی۔ آپ نے باوجود اس کے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، حدیث شریف میں کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاجزی اپنائی۔ 25 حج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل کیے ہیں آپ نے، اللہ اکبر۔ یعنی اتنی شان کے باوجود اور اتنے عبادت گزار کہ اکثر آپ کو ساری رات نوافل پڑھنا، اور لوگ آپ کو ہدیے نذرانے بہت دیتے تھے، اولاد رسول ہونے کی وجہ سے آپ رات نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ تقسیم کر دیتے تھے، اتنے سخی تھے، اتنی سخاوت تھی آپ کی۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا مسجد میں، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے اللہ سے کہا مجھے اتنے چاہیے، آپ نے اپنے خادم کو بلایا، گھر میں جتنے رکھے ہیں لا کے اس کو دے دو۔ اس طرح آپ لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ اور وہ جو ایک بڑا مشہور واقعہ قرآن کی آیت کے حوالے سے، دسترخوان لگا ہوا تھا، مہمان بیٹھے ہوئے تھے، خادم جو کھانا لایا اس سے ہاتھ سلپ ہو گیا، پھسل گیا اس کا اور برتن گر گیا، اس سے لوگوں کے کپڑے آلودہ ہوئے۔ آپ نے اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا گھور کے دیکھنا، اس طرح دیکھا تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ آپ فوراً مسکرا دیے، دیر نہیں لگائی کہ آگے اچھا مجھے اب آیتیں سناتے ہو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں، فوراً مسکرا دیے۔ اس نے کہا جی اتنا ہی نہیں، والعافین عن الناس، وہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سبحان فرمایا تجھے معاف کیا۔ اس نے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا تجھے آزاد کیا۔ کیا بات، سبحان یعنی اس حد تک آپ کا اخلاق کریمانہ اس کا اندازہ کیا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے اپنی والدہ کے لیے فرماتے ہیں میری والدہ عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تھی تو فجر ہو جاتی تھی۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے جنت نہیں، جنت کی سرداری ہے، اس کے باوجود اتنی عبادت کریں اور ہم محبت کا دعویٰ کر کے فرض بھی ادا نہ کریں، کتنی محرومی ہوگی ہمارے لیے۔ تو محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے فرما برداری کی جاتی ہے، تو ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کی سیرت کو دیکھیں۔ یہ ابھی کم سن تھے، چھوٹے کا لفظ میں ان کے لیے اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ وہ چھوٹے تو کبھی بھی نہیں تھے، ابھی عمر بظاہر گنتی کے لحاظ سے کم تھی، مسجد میں آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ ممبر سے اترے، آگے بڑھ کے بچے کو تھام لیا کہ ابھی کم سن ہے لڑکھڑا نہ جائے، لے آئے اور گود میں بٹھا لیا۔ حالت یہ تھی کہ ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھتے تھے، ایک نظر ہجوم کو دیکھتے تھے۔ اس وقت نبی پاک نے یہ فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، ان قریب اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ مسلمانوں کے نبی پاک کو علم ہے، اللہ کی عطا سے سب کو جانتے ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں، اور گروہوں کے لیے بھی فرما دیا کہ دونوں مسلمان ہوں گے، یہ بھی ہمیں ایک اشارہ مل گیا۔ چنانچہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا وصال ہوا تو آپ کو لوگوں نے خلیفہ چن لیا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ادھر حضرت امیر معاویہ نے اپنے لیے اعلان کر دیا، اب خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق خلافت کی مدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال فرمائی، اس میں صرف 6 مہینے باقی رہ گئے تھے، باقی حضرت علی پر وہ زمانہ ہو گیا تھا، 6 مہینے باقی، اب 6 مہینے وہ حضرت امام حسن کے شامل کیے جائیں تو وہ پورے ہو جاتے ہیں، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ آپ نے خود پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ کو، کیا اس لیے مسلمانوں میں کشت و خون ہو جائے کہ تخت چاہیے؟ مجھے ایسی سرداری نہیں چاہیے، تم اس پر شرائط لکھو۔ انہوں نے کہا آپ جو لکھیں میں قبول کر لوں گا۔ چنانچہ شرائط لکھی گئیں اور آپ نے
इमारत हुकूमत छोड़ी, ये कितना बड़ा वस्फ है आपका। आज कोई आप मामूली सी चीज़ नहीं छोड़ते, हुकूमत, जी, खिलाफत छोड़ दी, हुकूमत छोड़ दी कि मुसलमानों में कत्ल व गारत ना हो। एक तो वो पेश गोई जो हुजूर ने फोरकास्ट की थी वो पूरी हो गई, दूसरा ये कि खिलाफत चूँकि ख़त्म हो रही थी, अब मलूकियत शुरू होनी थी। तो आपने कहा कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, दुनियावी हुकूमत मुझे नहीं चाहिए। तो ये इतना बड़ा किरदार, इसीलिए अब अइम्मा अहले बैत में हुसैनी लिए जाते हैं, चूँकि आपने क़ुरबान कर दी। और उसके लिए ये बताया जाता है कि इमाम मोहम्मद महदी 12वें इमाम जो तशरीफ़ लाएंगे वो हज़रत इमाम हसन की औलाद से होंगे। महदी के माने हिदायत याफ्ता, तो वो आएंगे और अमन कायम होगा। तो हज़रत इमाम हसन का ये एक किरदार, ये पूरी कायनात में बड़ी अहम और नुमायाँ मिसाल है, और ये भी खानवादाए रसूल से हमें मिली है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हिल्म का ज़िक्र किया था, उनके तहम्मुल, उनकी बर्दाश्त का, तो वो भी उम्मत को पैगाम मिला। वो भी उस दौर में जब कि ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। और फिर ये देखें ना कि जानेसारों की कमी नहीं थी, दोनों साइड वफादारों की कमी नहीं थी, लेकिन सिर्फ हुकूमत या कुर्सी के लिए आपने न कहा मुझे नहीं चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस शर्त ये है कि नबी का निज़ाम बरकरार रहे। जब उसमें देखा फ़र्क आया तो आपके भाई हज़रत इमाम हुसैन ने किरदार अदा किया। बिल्कुल। राम साहब, गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के बाद यहीं से जो है कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन किराम, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, यहीं से आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे और उनकी ज़िंदगी के, उनके सीरत के पहलुओं से रोशनी हासिल करें। सरकार मेरी बात बनाए रखना। सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी नाज़रीन किराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं। गुफ्तगू हो रही है शहज़ादा रसूल इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से। और प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। रमज़ान मुबारक की आज का दिन ख़ास तौर पे आपकी विलादत के हवाले से मनाया जाता है, और यकीनी तौर पे जो कौमें अपने मोहसिनीन को याद रखती हैं और उनकी ज़िंदगियों से सबक हासिल करती हैं, तो यकीनी तौर पे मुक़द्दर में उनके कामयाबी और कामरानी ही आती है। अल्लामा साहब, आपने जिस तरह भी ब्रेक से पहले ज़िक्र किया कि दो ग्रोहों में, मुसलमानों के दो ग्रोहों में सुलह करवाई, इसके अलावा जब दौरान खिलाफत कोई ऐसा वाक़या या उसके बाद के कोई ऐसे वाक़यात जो कि हमारे लिए, मुझे नाज़रीन को वाक़यात तो सुनते रहते हैं, मुझे उनके बारे में बताना है कि इन लोगों की महब्बत हम पर वाजिब कर दी गई है। अल्लाह अकबर। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ मेरे हबीब, आप फरमा दीजिए, मैंने तुम्हें दीन सिखाया, अल्लाह की नेमतें सब कुछ पहचान करवाई है, उसका कुछ बदल एवज़ नहीं मांगता सिवाय क़राबत की, मवद्दत। एक होती है महब्बत, एक होती है मवद्दत खालिस, अक़ीदत व मोहब्बत, जो उसमें इजाफ़ा हो सकता है, कमी नहीं हो सकती, और वो लाज़मी है। तो इन हज़रात की, जिनको हम अहले बैत नबुव्वत कहते हैं, इनकी महब्बत हम पर लाजिम है, ये हमारे ईमान की बुनियादों में शामिल है। अब उसमें नबी पाक से जितने करीब है, चुनाचे पूछा गया कि जो आपके क़राबत है, जिनकी मोहब्बत वाजिब की गई है, वो कौन हैं? तो नबी पाक ने इन्हीं हस्तियों का नाम लिया। एक हदीस सुनाऊंगा, नाजरीन को सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों शहजादों का हाथ पकड़ा, इमाम हसन इमाम हुसैन का। ये सहाबी भी हैं, ये बात भी लोगों के जहन में रहे, ये अहले बैत भी हैं, सहाबी भी हैं। कम सिन सहाबा में नुमायाँ तौर पर इनका नाम आता है। दोनों का हाथ पकड़ा और फरमाया, मन अहब्बनी, जो मुझसे मोहब्बत रखता है रखेगा, व अहब्ब हाज़ैन, अल्लाह, और इन दोनों से प्यार रखेगा, मोहब्बत।
व अबाहुमा व उम्महुमा, और इनके माँ बाप बाप से। 5 हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हुम। क्या होगा उसको? फरमाया काना माई फ़ी दराजती यौमल क़ियामा, वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा मेरे दर्जे में। अल्लाह अल्लाह। और उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, बार बार फरमाया मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अल्लाह से डराता हूँ अपने अहले बैत के बारे में। और ख़ास तौर पर फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान किताबुल्लाह और दूसरी इतरत, अपनी औलाद। राम साहब एक कॉलर है। ज़रूर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये अलामा साहब बता रहे थे कि इमाम हसन और दूसरे फरीक के दरमियान शर्तें तय हुई, मुआहिदा हुआ, इमाम ने वो छोड़ दी हुकूमत। तो वो शर्तें क्या थीं और किस फरीक ने अमल किया और किसने ना किया? ये मेरा सवाल था। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। यकीनी तौर पर जब सीरत पे गुफ्तगू हो रही होती है तो शराइत की तरफ जाना मुनासिब नहीं होता। अलामा साहब जवाब। जी, उसमें मैं इसलिए इस प्रोग्राम में वो बातें नहीं कर रहा हूँ जिनमें कुछ लोग उलझ जाते हैं। शराइत में यही था कि जी वो किताब व सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे निज़ाम, और अमीर मुआविया के बाद इमाम हसन को ये चीज़ मिलेगी, और जो हज़रत अली के ख़िलाफ़ अगर कोई बातें कर रहे हैं वो नहीं की जाएंगी, और उनसे कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा। उन लोगों को खामखा जिस तरह कहते हैं ना एक्यूज़ बनाया जाए, वो नहीं होगा। अगर कोई ये कहे कि कोई ऐसी बात उनके बारे में करे तो मैं उससे ये कहूँगा कि सैयदना इमाम हसन मुझसे और सब लोगों से ज़्यादा दीन को जानते थे। बिल्कुल। उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया को जब दिया, उनके हाथ में बैयत की, उनसे सुलह की। अब कोई एतराज़ करूं तो मैं इमाम हसन पर एतराज़ होता है, बिल्कुल मैं उसकी किसी तरह जुर्रत नहीं कर हैसियत ही सकता। नहीं है हैसियत के अलावा मैं करूँगा तो अपना बेड़ा गर्क करूँगा, अपने लिए बर्बादी करूँगा। ये शहज़ादे वहाँ जाते थे, हज़रत अमीर मुआविया के पास रहते थे, इनको माहाना वो नजराने भेजते थे और ताल्लुक़ था। और हज़रत अमीर मुआविया की भांजी हज़रत अली अकबर की वालिदा है, इमाम हुसैन की ज़ौजा है, रिश्ते हैं, नाते हैं। और ख़ुद हज़रत अमीर मुआविया की बहन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है। तो अगर कोई बातें हैं हमें उनमें नहीं जाना। उनकी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए और उनके तमाम मामलत अल्लाह और उसके रसूल के, तो वो बेहतर जाने, हम क्या उस मामले में। बिल्कुल। अल्लाह साहब एक कॉलर है। जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जावेद रफीक कादरी है। जी जावेद साहब। हाँ, मैं हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताबिक अल्लामा साहब से सवाल करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। कि जैसे कि अल्लामा साहब ने जिक्र किया कि हदीस है कि 30 साल तक जो खिलाफत रहेगी मेरे बाद, तो जब हम खलीफा राशिदीन की बात करते हैं तो हम 4 का जिक्र करते हैं। 3 महीने की हजरत इमाम हसन की जो है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनका नाम क्यों नहीं आता? मतलब 5वें नाम खलीफा राशिदीन, उनका नाम भी होना चाहिए। आपको इसके बारे में कैसे? ठीक है, आपका सवाल आ गया। कौन नहीं मानता उनको, लेकिन वो मुद्दत इतनी कम है कि उसका जिक्र, चूँकि उस वक्त वो एक निज़ा की कैफियत रही, लेकिन कौन मुसलमान है जो नहीं मानता? बिल्कुल बिलाशुबा वो खुलाफाए राशिदीन में है, 5वें वो भी है, लेकिन दौर जो था ज़्यादा चूँकि उन 4 का गुज़रा, इसलिए वो ज़्यादा ज़िक्र होता है। लेकिन हज़रत इमाम हसन के लिए कोई ऐसा नहीं कहता कि वो खलीफाए राशिद नहीं थे, लेकिन मुद्दत बहुत कम थी, बहुत कम अरसा। तो सब कोई मुसलमान इनमें से किसी एक की भी बेअदबी करे, वो अपने ईमान के लिए मसला बना लेगा। ये बहुत मोहतरम हस्तियाँ हैं, हम तो इनका नाम लेने के भी काबिल नहीं। अल्लाह ने मेहरबानी की है, उनकी मोहब्बत दी है, हमें तो इस पर शुक्र करना चाहिए। बेशक बेशक। तो वो मैं जो कह रहा था, हुजूर ने फरमाया मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अपनी इतरत। यहाँ सहाबा का जिक्र नहीं है, क्योंकि सहाबी तो उस वक्त तक रहेंगे ना जब तक नबी पाक है। ज़ाहिरी हयात में, जब ज़ाहिरी हयात नबी पाक ने पर्दा फरमा लिया तो अब सहाबियत तो नहीं मिलेगी, लेकिन अहले बैत तो क़यामत तक रहेंगे। तो और उनसे वाबस्ता रहना है हमने। और नबी पाक ने बार बार ताकीद की है अपने अहले बैत के बारे में। मगर सैयद अमाद साहब, मेरा
जिगर फटता है। मुसलमान कहलाने वाले कैसे हुए? मैं साहबा की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की जिन्होंने कलेमा तो पढ़ा मगर कलेमे का पास नहीं किया। 11 इमाम गुजर चुके ना आले बैत के। हज़रत अली पहले है, हज़रत इमाम हसन दूसरे, फिर इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, फिर इमाम तक़ी और इमाम नक़ी और इमाम हसन अस्करी। यही इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे। इनमें से किसी एक को भी उम्मत ने तबई ज़िंदगी गुजारने नहीं दी। इन सब की वफ़ात शहादत हुई है या जहर दिया गया है, तकलीफ़ें दी गई हैं इनको। वो मुसलमान ही थे जो चंद सिक्कों की खातिर करबला में आ गए थे। हज़रत इमाम हसन के साथ क्या सलूक किया गया? हालांकि उन्होंने खिलाफत छोड़ दी, लेकिन कितने लोगों ने उनको इस बात पर मलामत की। तो उन्होंने कहा तुम्हारी मलामत से मुझे वो चीज़ ज़्यादा अजीज़ है जो मैंने किया है, मैंने अल्लाह के लिए किया है। कुछ तो खून से बचाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये मुसलमान कहलाने वाले इस हद तक गए हैं जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब। नमाज में पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना, और फिर उनके ख़िलाफ़ भी खड़े हुए हैं, करबला में भी खड़े हुए हैं। कितने शहजादों को कैद किया गया, जहर दिया गया, क्या क्या तकलीफ़ें पहुंचाई गई। ये भी किरदार रहा है मुसलमानों का। और आज भी उनके नाम पर क़ुरबान होने की बजाय, उन्हें सलाम करने की बजाय, उनकी खिदमात को तस्लीम करने की बजाय हम बहसें कर रहे हैं, हम इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मैं हज़रत अमीर मुआविया पे कोई एतराज़ करूं तो जाता बात तो हज़रत इमाम हसन को जाती है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मुझे अपने हाल का मालूम नहीं, मुझे अपना नहीं मालूम मैं किन चीज़ों से गाफिल हूँ, कौन से फ़राइज़ वाजिबात अदा कर रहा हूँ या नहीं, और उन हस्तियों पे सवालात के जवाब मौजूद नहीं है और दूसरों पर बहस कर रहा हूँ जिन हस्तियों की ताज़ीम मेरे ईमान का सरमाया है। तो हमें सोचना होगा। तो मैंने यही फ़िक्र देनी है आज कि खुदा के लिए इन मुक़द्दस हस्तियों का अदब कीजिए, एहतराम कीजिए, क्योंकि इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जो इनको तकलीफ़ पहुंचाता है वो नबी को तकलीफ़ देता है, और नबी की तकलीफ़ अल्लाह को अज़ियत देना, और कोई मुसलमान इसको पसंद नहीं करेगा। हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। सब आखिरी कलमात, आखिरी बस यही है कि हमारे लिए नबी पाक की हर निस्बत प्यारी है। बेशक बेशक। मैं उनके शहर से भी प्यार करता हूँ, वहाँ की हवाओं से भी प्यार करता हूँ, खाक से भी प्यार। तो मैं नबी के खून से क्यों नहीं प्यार करूँगा? नबी के यारों से क्यों नहीं प्यार? जो उनके यार हैं, जो उनके प्यारे हैं। मुझे सब मोहतरम अल्लाह अदब की तौफीक दे। गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया राम साहब। नाज़रीन करम, कोशिश ये रहेगी कि इसी तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आइंदा की नशिस्तों में भी गुफ्तगू करें, और आइंदा सैयदना इमाम हसन के बाद जो है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, आगे बदर के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, फ़तह मक्का के हवाले से भी गुफ्तगू होगी। तो कोशिश करिएगा कि इन नशिस्तों का हिस्सा बने और अपने अहलो अयाल के साथ बने, ताकि जो हम अकायद और नज़रियात के हवाले से तालीमात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी हासिल हो। और यकीनी तौर पे ये कामयाबी हमारी नहीं बल्कि हम दोनों के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हम्माद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सरकार मेरी बात बनाए